So, very good morning, children. Now we are in lecture number 3, right? Lecture number 3 of chapter number 7. That is following the Mahatma, right? ये दिक्कतें स्क्रीन पे क्यों आती है कि मैं कैमरा भी मेरे को शॉट एडजस्ट करना पड़ता है, शुरू भी मेरे को करना पड़ता है और आपके सामने भी स्क्रीन पे भी इसीलिए 2-5 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है, राइट? सो वी हैव स्टडीड अप टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन लास्ट टॉपिक, राइट? लास्ट टॉपिक में हम जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ चुके थे, राइट? इन टुडे दैट इज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 7 फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1 में. Before studying further, we will go back to some old topic that is called topic number 2, that is called lecture number 2. Let us discuss about once again about Rowell Act connected to Jallianwala Bagh, because see, that was a main thing. Rowell Act basically aimed to crush the freedom struggle which was getting fiercer day by day in India, right? So, an act was passed in British Parliament which was called Rowell Act because it was drafted by Sir John Rowell, right? British Sansad jo the. He has designed this act and he has intentionally designed why he wanted to crush the freedom struggle going in India. And as people came to know, because awareness was spread almost, people came to know about this Black Act because number of things was connected to this act. Number 1, freedom of thought and speech was totally snatched away by government, because in democracy you cannot stop this, right? Police, that means law, can arrest, can detain a person for unlimited time and put him or her into a jail without a cause of reason, because the accuser do not have to produce any reason. Accused ऐसे भी नहीं बोल सकता कि भाई मेरा गुनाह क्या है, आप मेरे को बताओ तो कर, आपने मेरे को क्यों गिरफ्तार किया है, वो बोलना भी मना था. तो ये पूरा डिजाइन महात्मा गांधी समझ चुके थे कि ब्रिटिश wants to control the freedom movement which is going hard, and that is why Rowell Act was imposed. This act was vehemently opposed in each and every part of India, specifically in big cities, because more awareness at that time was there in big cities. With such incident, it was a time of Baisakhi. I mean, as you know, Baisakhi is the main festival of Punjab. People gathered there. People were in joyous mood. Within the framework of this act, 2 local leaders of Punjab, that is called Dr. Satyapal Kilchu and Dr. Kilchu were arrested. In order to oppose this arrest, a mass rally was organized and a procession was taken in Amritsar, all these things. And on the day of Baisakhi, that is 13th of April, a meeting was organized, right? Sabha, where local leaders were supposed to update the people. Peaceful agitation was there. And because of this, and there was a great boiling atmosphere because of this Rowell Act all over India. Whole situation was boiling and there was great anxiety among people. So, as this day of meeting came, thousands of people, there were youngsters, there were children, there was young, old, ladies, chaps, thousands, almost 10,000 people attended this meeting. But before that, the situation of Amritsar was little precarious.
So section 144 was imposed. Under this section, more than four people cannot get together at one place. So taking into consideration of this section, without any giving prior warning, वरना पुलिस क्या करते हैं कि पहले वार्निंग देते हैं, चले जाने को बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. And there was only a single entrance, an exit point. That was closed down. Without giving any warning, without asking anyone to go, SP means Superintendent of Amritsar, General Dyer, opened fire on these innocent people. Right? कितने वक्त? Unless and until his ammunition did not run out. सारी गोलियां जब तक खत्म नहीं हुई तब तक उसने फायरिंग की. 2 पैरेलल कमीशन बिठाए गए. ब्रिटिश ने हंटर कमीशन बिठाया जिसमें 379 का आंकड़ा मिला. कांग्रेस कमेटी ने अपनी तरह से जांच करवाई, उसमें more than 1000 innocent people were killed and गांधी जी totally lost faith in British government, right? और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको समझा था, उसके पहले मेरे को ये तो समझाना पड़ेगा ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ था, वरना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कुछ मायने ही नहीं रहेगा, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं होगा. पंजाब की घटना जो हुई, जनरल डायर को इंग्लैंड भेजा गया और इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट उसको 2000 पाउंड का इनाम मिला, उसको क्रॉस का इनाम मिला, एंड हिज एक्ट वाज कंसीडर्ड एज अ ब्रेव एक्ट. जो उसने हिंदुस्तान में कायरता का काम किया था, निर्दोष बूढ़े बच्चे औरतों को मारा था, वो इंग्लैंड में जाके हीरो बन गया था. एंड दिस वाज अ ग्रेट शॉक टू महात्मा गांधी, क्योंकि उसको ब्रिटिश न्यायतंत्र में पूरा भरोसा था. लेकिन इस घटना के बाद उसका भरोसा बिल्कुल टूट गया था. बराबर, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सबसे बढ़िया न्याय प्रथा ब्रिटेन की थी, और ऐसी जो कांड हुआ, ये जो घटना हुई, इसमें तो दरअसल जनरल डायर को ऑन स्पॉट फांसी मिलनी चाहिए, ऐसा कांड किया था. और इसके वजह पनिशमेंट की वजह उसको आप इनाम लगाते हो, उसको आप खिताब देते हो, उसको एक्ट ऑफ ब्रेवरी बताते हो, उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप सम्मान करते हो, जो 1000 से ज्यादा लोगों का हत्यारा है. Each and every Indian were deeply touched by this incident. बहुत गहरा सदमा है कि हिंदुस्तानी को पहुंचा था कि ये क्या है भैया, आप तो इसको पनिशमेंट की बजाय उसको पारितोषिक दे रहे हो, उसको सजा देने की बजाय आप उसको बिरदा रहे हो, उसको हीरो बना रहे हो, ये क्या है? And that is why in Congress working committee meeting, Gandhi ji gave a call of starting non-cooperation movement. वो मैं समझाऊंगा what is meant by non-cooperation. पर उसके पहले एक जो घटना हुई वो खिलाफत मूवमेंट की थी. अच्छा, खिलाफत मूवमेंट में क्या था? मैं मुस्लिम लीग बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. इट इज नॉट इन माई टॉपिक, रादर आई डोंट अप्रिशिएट दैट मूवमेंट मेरे हिसाब से. राइट, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, टर्की हारा, एंड टर्की का जो सुल्तान था वो ब्रिटिश के हाथों कैप्चर हुआ. Britain emerged victorious in World War I when King William Kaiser fled away Germany. Germany was defeated. Turkey supported Germany, and hence all the Axis nations which supported Germany. And to accept the defeat, Turkey was one of the Axis nations supporting Germany. Now, the Khalifa of Turkey, Sultan of Turkey, was arrested by ब्रिटेन. बराबर है? तो
तो मुस्लिम लीग ने जो 1906 में बनी थी, कोई उस वक्त मैंने आपको ऐसा बोला था, मुस्लिम लीग कभी भी किसी भी काम में आई नहीं थी, बराबर है। वो अपना ही खिचड़ी पका रही थी क्योंकि वो ब्रिटिश की देन थी। तो मुस्लिम लीग ने कोशिश की कि भाई उसके जो सुल्तान है वो तुर्की के सुल्तान वैसे तो रिलीजियस हेड है, he is having two posts in one. He is a king of Sultan, he is the emperor of Turkey, as well as he is also the religious head of Turkey. He was captured. So Muslims all over the world tried to plead British government, requested British government to relieve their religious head. और वैसा ही नाटक हमारे इंडिया में भी हुआ। मुस्लिम लीग ने कई सारे प्रयत्न किए। मुस्लिम लीग को शुरुआत में ऐसा था कि ब्रिटिश तो हमारे साथीदार है, हम जो करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उसका कहना हम मानते हैं, हमारा कहना वो मानेंगे, राइट। लेकिन मुस्लिम लीग को ये पता नहीं था कि ब्रिटिश हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश को बार बार रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें की, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर जाके मुस्लिम लीग के नेताओं ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि गांधी जी आप हमको मदद करो कि भाई हमारा जो रिलीजियस हेड है, तुर्की का जो सुल्तान है, जो ब्रिटेन ने कैप्चर किया एज अ पार्ट ऑफ वॉर, उसको आप छुड़वाओ। गांधी जी तो आपको मालूम है बड़े दिल वाले थे, विशाल दिल था उसका। गांधी जी ने बात मान ली कि चलो भैया कोई बात नहीं, क्योंकि उसके खून में राजनीति नहीं थी, वो राजनीति नहीं करते थे, वो आगे पीछे का कुछ नहीं देखते थे, बड़े दिल वाले थे, सबको माफ करते थे। और ऐसा भी दूसरा कारण क्या था कि जो 14-15 साल से मुस्लिम लीग बनी है, फिर भी पैरेलल काम कर रही है, कभी नजदीक नहीं आई। तो आज ये मौका है कि अगर उसके सुल्तान को आज़ाद करवाए, उसके रिलीजियस हेड को आज़ाद करवाए, तो शायद मुस्लिम लीग का मन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा, उसको अपने किए पे या अपनी बिहेवियर पे कुछ शायद पछतावा होगा, और ये सब कुछ भूल के वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। मतलब they will join the mainstream of the people, so there would be no parallel parties, two parallel parties fighting for freedom. वैसे तो मुस्लिम लीग का कोई वजूद ही नहीं था, वो अपने आप ही ठेकड़ा मार रही थी, जिसे हम बोलते हैं ना बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन गांधी जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी ने बोला अली ब्रदर्स को, राइट, शौकत अली, मोहम्मद अली ब्रदर, जो उस वक्त के मुस्लिम लीग के नेता थे, बड़े नेता थे, उसको बोला कि हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश से कि आपके रिलीजियस है को छोड़ा जाए। और गांधी जी ने रिक्वेस्ट भी किया, फिर भी कुछ बात बनी नहीं। मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि ये लोग तो गांधी जी से भी नहीं मान रहे, क्योंकि वो लोग अपने स्वार्थ से गांधी जी के पास आए थे, कांग्रेस के पास आए थे, स्वार्थ से आए थे। गांधी जी से भी ये बात नहीं बनी, मामला पेचीदा होने लगा। फिर मुस्लिम लीग के नेता समझ गए कि भाई चलो हमारे से भी बात नहीं बनी, महात्मा गांधी से भी ये बात नहीं बनती है, तो फिर हम कांग्रेस के साथ काहे को रहे, राइट। तो महात्मा गांधी की इनको क्या जरूरत है। और ये घटना के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। मतलब साफ हुआ कि अपने खलीफा को छुड़ाने के लिए, अपने मतलब के लिए वो थोड़े समय तक गांधी जी के पास आए थे। मकसद निकल गया, मतलब खत्म हो गया, अपनी बात नहीं बनी, वापस गांधी जी से विड्रॉ हो गए, डिस्टेंस बना लिया। और लेट मी से फ्रॉम 1906 जब मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई, तब जाके भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ,
1947 तक, ऑलमोस्ट 40 इयर्स, ये एक ही घटना थी, खिलाफत मूवमेंट वाली घटना, जब मुस्लिम लीग महात्मा गांधी की नजदीक आई थी और उसमें भी उसका स्वार्थ था। समझ में? उसका स्वार्थ था, उसका कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, उसका मतलब था, मतलब निकल गया, चलो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये घटना खिलाफत मूवमेंट वाली है। तो हम वापस ट्रैक पे आ जाएंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये पूरी घटना आपको समझ में आ गई क्या? नाउ आई शैल स्टार्ट विद माय टॉपिक, राइट? सो खिलाफत मूवमेंट, आफ्टर attaining victory in World War I, the Allied nations signed a treaty with Turkey, which was defeated, क्योंकि टर्की जर्मनी की साइड से लड़ रहा था और जर्मनी डिफीट हो रहा था। तो जो जो वॉर में भाग लिए थे उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगी ना। एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट, ब्रिटेन कैप्चर्ड द सुल्तान ऑफ टर्की, who was also the religious head of Turkey, right? The terms and conditions of the treaty were so strict and unjust to Turkey. The Sultan of Turkey was also the religious head of Islam too. वो सिर्फ सुल्तान नहीं थे टर्की के, वो रिलीजियस हेड भी थे। तो दुनिया के सारे मुस्लिम भाइयों को ये दुख हुआ कि हमारे आका, हमारे रिलीजियस हेड को मुक्त करो। कई, खाली हिंदुस्तान में से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी जहां जहां भी ब्रिटिश सरकार थी, सारे देश में से आवाज उठी अपनी अपनी तरह से कि भाई आप टर्की के सुल्तान को आजाद करो, बख्शो। लेकिन there was no fruitful result achieved. As per treaty, the Khilafat, post of Khalifa, was to be terminated. उसको रिलीजियस हेड पद से निकाला गया था। किसने निकाला था? ब्रिटेन ने। उसको सिर्फ किंगशिप ही दिया था, रिलीजियस हेड का खिताब छीन लिया था। This movement, Muslim all over the world, including India, launched the protest in favor of Khalifa. कि भाई हम हमारे रिलीजियस हेड को आप क्यों बर्खास्त कर रहे हो, क्यों टर्मिनेट कर रहे हो? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? वॉर था, खत्म हुआ, आपने उसको बंदी बना, अब आजाद कर दो, बात खत्म हुई, ट्रीटी बनवा लो। लेकिन यू कैन नॉट टर्मिनेट आवर रिलीजियस हेड। But British did not pay any attention to any treaties and any treaties which was made by crores of people at that time around the world. And finally, they abolished the post of Khalifa, right? This movement in India was known as Khilafat movement. The main leaders of Khilafat movement were Ali brothers. अभी मैंने बोला था शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों मौलाना थे। मतलब जैसे मंदिर में प्रीस्ट बोलते हैं, फादर, क्रिश्चियन को फादर बोलते हैं, बराबर? जैसे मुस्लिम धर्मगुरु को मौलाना बोलते हैं, वो दोनों मौलाना थे, मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। वैसे वो लोग मुस्लिम लीग के नेता भी थे और मौलाना भी थे, रिलीजियस प्रीचर भी थे। गांधी जी डिसाइडेड, ये दोनों गांधी जी को मिले, गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एंड इन टर्न जॉइन द मुस्लिम्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। जो मुस्लिम लीग पैरेलल चल रही थी, इतना बड़ा काम हुआ था भारत में, जलियांवाला बाग में, तो मुस्लिम लीग से भी आग्रह किया कि आप भी इधर के रहने वाले हो, आप भी भारतीय हो, और 1000 जो निर्दोष लोग मरे उसमें मुसलमान भाई बहन भी है, तो आप भी प्रोटेस्ट करो, आप सच्चाई देखो, आप सच्चाई से मुंह नहीं छिपा सकते, आप ब्रिटिश को बोलो कि बिल्कुल गलत हुआ है। उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने हाँ भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप हमको खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करो, हमारे बादशाह को आज़ाद करवाने की सोचो, हम आपकी बात सोचेंगे, मतलब सहयोग देंगे। गांधी जी decided to support Khilafat movement and in turn join the Muslims to protest against the Jallianwala Bagh massacre. Right?
his intention to demand Swaraj was combined power of Hindu-Muslim community. क्योंकि गांधी जी जो पहले से नाराज थे कि एक देश में रह के दो कौम के बीच बंटवारा क्यों, और ये बंटवारा तर्जनी इंटेंशनली किया था, because in 1906 he wanted to break Hindu-Muslim unity. उसके दिमाग में ऐसा कीड़ा था कि अगर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए, यूनिटी टूट गई, तो ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे और हम चुपचाप तमाशा देखेंगे, शासन करेंगे, मौज करेंगे। लेकिन उसका सपना ये पूरा नहीं हुआ। जो बंगाल को उसने 1905 में तोड़ा था, वो ज्यादा ताकत से, ज्यादा शक्ति से 1911 में वापस जुड़ गया। वो मैंने आपको सब कुछ डिटेल समझाया, लेकिन ये बात नहीं बनी। सो खिलाफत में हवा में खत्म हो गई, उड़ गई। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट एक्ट, एक्चुअली इट वाज नॉट अनजस्ट, इट वाज कॉल्ड मैसेकर, मास किलिंग, इट वाज वन टाइप ऑफ जीनोसाइड। कई निर्दोष लोगों की हत्या करके एक हत्यारा इंग्लैंड भाग चुका था, और इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की वजह, उसका आप सम्मान करते हो, उसको आप अवार्ड देते हो, उसको आप कोई टाइटल से नवाजते हो, तो ये सब क्या है? ये थोड़ी चलता है। विद दिस इंसिडेंट गांधी जी वाज कंप्लीटली मूव्ड, ही वाज शॉक्ड। पूरा देश शॉक में डूब चुका था कि ये क्या है? मासूम लोगों का हत्यारा इंग्लैंड जाके बैठा है, और उस वक्त इंग्लैंड की महारानी उसको सम्मानित कर रही है। ये क्या है? सो गांधी जी मेड अप हिज माइंड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ही लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखते हैं। In his famous book, Hind Swaraj, right? What was the name of a book? Hind Swaraj. Gandhiji said that the British rule could be established in India due to cooperation of Indians, and it ran with their support only. अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, तो आप हिंदुस्तान की आवाम की, हिंदुस्तान के लोगों की कदर करना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान पे अमानुषी अत्याचार बता रहे हो और आप हिंदुस्तान के मालिक बनना चाहते हो, कभी नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इफ यू वांट टू रूल इंडिया, राइट? सिर्फ आप डंडे या कानून से हुकूमत नहीं कर सकते, आपको लोगों का दिल भी जीतना पड़ेगा। और आपने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जो हिंदुस्तानी लोग खुश हुए। एक भी काम आप मेरे को बताओ जो ब्रिटिश ने अच्छा किया था। If the Indians would withdraw their support and cooperation, the British rule would end within a year and Swaraj will be established. Because दुनिया के किसी भी देश में, आज नहीं, हजारों साल पहले देख लो, not a single ruler can rule against the wish of the people. Right? आज भी हम डेमोक्रेसी में हम देखते हैं, आज हम बोलते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। क्यों है? क्योंकि लोगों ने उसको दिल में जगा दिया है, उसके काम को लोगों ने सराहा है, लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, देखते हैं सब कि वो इंसान भारत के लिए क्या कुछ नहीं करता, बराबर है। इसीलिए वो लोग उसको हमने दिल में जगा दिया। We love him by the depth of our heart, and that is why he has become Prime Minister for second term. That means we at present 138 crore Indians love our Prime Minister. मैं तो कई बार ये छुट्टियों का
दौर चल रहा है, रात को मैं न्यूज़ देखता हूँ, जैसे कोई स्पीचेस देखता हूँ, तो आप कोई भी इंटरनेशनल स्पीच देख लो, आप दुबई देख लो, लंदन की वेम्बली स्टेडियम देख लो, इवन जो ट्रम्प का जो लास्ट ईयर अमेरिका में जो हाउडी मोदी हुआ हाउस ह्यूस्टन में, हाउ डू यू मोदी, हाउडी मोदी, वो कार्यक्रम देख लो, कितने लोग, क्योंकि आज आप उनको मालूम है किसी भी जगह पे हिंदुस्तानी लोग होते ही हैं, राइट? And once Modi enters on the stage, people are madly, literally mad, shouting Modi, Modi, right? आप सुन लो, आप किसी भी स्पीच देखो, तकरीबन 2, 3, 5 मिनट तक वो मोदी को ऐसे खड़ा ही रहना पड़ता है। That is the love, warmth, affection delivered by billions of people. And that is why he is ruling our hearts. He is not ruling India. He is ruling our hearts. और जब तक वो हमारे हाथ में है, तब तक उसको कुछ कोई नहीं कर सकता। ऐसी बात गांधी जी ने उस वक्त ब्रिटिश को बताई थी। You cannot rule against the wish of the people. First you have to make place in the hearts of the people. Then you can rule these people. आप हैंटर से, बंदूक से किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकते, right? If you want to rule them, first you have to create the place in the hearts of people, right? So, Gandhi started non-cooperation movement on the same line of thought. बराबर है? गांधी जी ने non-cooperation movement शुरू किया। So, जोड़े the two main features of the non-cooperation movement were just a minute. Well, first was the complete boycott of government jobs, legislative councils, British educations, and boycotting of British educational institutes. और let me remind, इसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत हमारे गुजरात में गुजरात यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, जो अहमदाबाद में है, गुजरात विद्यापीठ। हमारे गुजरात की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है गुजरात विद्यापीठ, गुजरात यूनिवर्सिटी। And that university was established in the time of non-cooperation movement, because it was the answer of Indians, we people, to boycott English schools, English education, and foreign things, British things, English things, right? So, British titles of honor, foreign clothes and goods, and the other creative aspect included the eradication of untouchability. क्योंकि उस वक्त हमारे आज भी देखते हैं 21st सेंचुरी में भी समाज बच चुका है, उस वक्त तो आप देख लो कितनी रिजिडिटी होगी, कितने समाज में ऊंच नीच का भेदभाव होगा, कि उस वक्त तो समाज बिल्कुल रिजिड था, भयंकर हद पे स्तर पर अनटचेबिलिटी थी। गांधी जी ने पूरी जिंदगी ये कलंक मिटाने की कोशिश की। उसका एक ही ध्येय था, एक ही मकसद था कि अगर ईश्वर हमको कोई डिफरेंस नहीं देता बनाने में, तो हम कौन होते हैं ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करने वाले? किसने हमको ये अधिकार दिया है? अगर ईश्वर ये भेदभाव नहीं रखता है, तो हम ये भेदभाव नहीं रख सकते। ऑल आर इक्वल, सब भाई भाई है, कोई छूट नहीं है, कोई अछूत नहीं है। It must be totally eradicated. The eradication of untouchability, communism, and consumption of alcohol, दारू, क्योंकि दारू से इंसान नहीं बर्बाद होता, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। गांधी जी ये सब चीज के खिलाफ थे। He advocated the propagation of Swadeshi goods,
चरखा, राइट, खादी एंड नेशनल एजुकेशन। मैंने बोला ना, और नेशनल एजुकेशन के तहत they were starting of Gujarat University. Gandhiji started non-cooperation movement by returning the title Kesare Hind. Right? Gandhiji was given the title from British. The title called Kesare Hind. He gave back that title. I don't want your title. आपके हाथ इनोसेंट लोगों के खून से रंगे हैं और वही हाथ से आप हमको टाइटल देने आते हो। हमारी भाई बहन की हत्या करके हमको टाइटल से नवाजते हो। नहीं चाहिए टाइटल, रखो वापस। He gave back the title, right? The movement picked up. The movement in 1921-22 पूरे देश में, पूरे देश में ये मूवमेंट फैल चुका था। लोगों ने ईगरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया, बट दिस मूवमेंट वाज टोटली इंस्ट्रक्टेड बाय महात्मा गांधी दैट इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, नॉट टोटल नॉन वायलेंस। आई विल नॉट टॉलरेट अ सिंगल एक्ट ऑफ वायलेंस। उसका प्रण था। Many leaders like मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचार्य, आसिफ अली left their advocacy. वकालत छोड़ दी, नहीं चाहिए गुलामी। Most of the elected members of legislative council and local self-government institution resigned from their post. MLA थे, MLC थे, right? सबने अपना ओहदा त्याग दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, नहीं चाहिए काम। The foreign clothes were burnt across the nation. The Charkha movement started to take place in every house. स्वदेशी का नारा गूंज रहा था, जैसे आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक वैसी तरह गांधी जी ने उस वक्त स्वदेशी का नारा दिया था और उस वक्त हमने एक्सेप्ट भी कर लिया था। आज भी लोग खादी के कपड़े पहनते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। स्वदेशी was promoted everywhere. Many national education institutes like काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ were established. Right? ये सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से हुआ। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होता गया, यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है गोरखपुर, उसमें एक छोटा सा कस्बा है, गांव चौरी चौरा, उधर लोग प्रोसेशन निकाल रहे थे, पीसफुल मार्च, एज पर लॉ एंड ऑर्डर। हैंडफुल ऑफ पुलिसमैन ट्राइड टू स्टॉप दिस प्रोसेशन। Procession did not stop. They opened fire at the procession. People became furious. They were angry because possibly one or two must have been hit. So the procession dispersed in all directions and tried to catch policemen. Policemen ran away from the spot. They got back into the police station. उसको ऐसा लगता था कि ये सब सेफ जगह है, हम पुलिस स्टेशन में छिप जाते हैं, वहाँ का जो एंग्री मॉब है वो चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। लेकिन मॉब वाज वेरी बिग, तकरीबन 2000 लोग का मॉब था। इन लोग ने क्या किया कि पूरी पुलिस स्टेशन को ऑर्डर कर दिया और बाहर मिट्टी का तेल डाल के पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया। और इसमें तकरीबन 21 to 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। उसको मार जिंदा जला दिया, मार दिया। और ये बात पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। When Mahatma Gandhi came to know about this incident, he was deeply shocked. He on spot suspended non-cooperation. He said, I have created a Himalayan blunder by giving the weapon of non-cooperation or non-violence to the people
who don't understand the meaning of non-violence. मैंने हिमालय से भी बड़ी भूल कर दी है। कैसे लोगों को मैंने नॉन वायलेंस का शस्त्र दे दिया जिसको नॉन वायलेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमको ये नहीं लड़ना है। मैं विड्रॉ करता हूँ अपने मूवमेंट और नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुई और इसकी वजह से कांग्रेस के बंटवारे हो गए। आधी कांग्रेस के लोग ऐसे थे जो गांधी जी की बात को सपोर्ट कर रहे थे और आधे कांग्रेस के लोग ऐसे थे जो गांधी जी का विरोध कर रहे थे। उसको ऐसा लगता है कि गांधी जी अपनी घर की पेढ़ी की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं, जो भी बोलते हैं वो ही करते हैं, तो ये तो नहीं चलता। सो देयर वाज स्प्लिटिंग कांग्रेस। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज Mahatma Gandhi was against the violent movement. The crowd was angry. Farmers of Gorakhpur district in UP attacked the Chori Chora police station in the year 1922 because the police had fired at the crowd, killing few and injuring many. पुलिस की गलती थी, लेकिन जब उसको तकलीफ हुई तो वो भाग गए, पुलिस स्टेशन में लॉक हो गए। The police station was set ablaze and 22 policemen were burnt alive in this incident. 22 लोगों की हत्या हुई थी, right? Due to this act, due to the act of violence, Gandhi ji withdrew non-cooperation movement immediately. Right? Just a minute, children. This is how non-cooperation movement started in 1920 and it withdrew in 1922 after the incident of Chori Chora. After calling off non-cooperation movement, Gandhiji focused on constructive activities in the remote rural areas. अपने काम पे लग गए थे, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, स्प्लिट हो गई थी। The social reforms propagated in the middle of the 20th century helped Gandhiji to earn more trust and faith in the people. गांधी जी अंदर से बहुत दुखी थे, बहुत नाराज थे और उसने ये काम शुरू कर दिया, समाज सेवा में लग गए। Gandhian ideas started uniting the people from different walks of life. The other two development of this period was establishment of Indian Communist Party and RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके आज पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मैंने बोले राष्ट्र आरएसएस के आदमी है, पहले आरएसएस में थे। हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह वो भी आरएसएस के है, राइट? ये आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है भाजपा, राइट? These parties visualized the future of India in quite different way. उसका पूरा तरीका वायलेंस था। Know about the social political events from your teacher, that is activity. Okay, things to know. Impression of Gandhiji on the mind of people. The workers of the tea garden in Assam shouted slogan, Gandhi Maharaj ki jai, and demanded permission to visit their villages. This was the respect of Gandhiji all over India. In many Vaishnava songs of Assam, Gandhi Raj is mentioned instead of Sri Krishna. भगवान कृष्ण की जगह वो लोग महात्मा गांधी का नाम ले रहे थे, ऐसा। The princely states of India too were highly influenced by Mahatma Gandhi. The Maharaja of Gondal was one of such king. Sir Bhagwat Singh Ji emphasized the constructive work, girls' education, and made the primary education compulsory. गांधी जी की बदौलत, गांधी जी की इंस्ट्रक्शन की वजह से गोंडल में गर्ल्स का एजुकेशन का प्रारंभ हुआ। कंपल्सरी गर्ल्स एजुकेशन बनाने के लिए उसने प्रेरणा दी थी। He patronized the making of Gujarati dictionary, भागवदो मंडल, गुजराती की डिक्शनरी जो बनी थी भागवदो मंडल, उसमें भी उसका कई बड़ा योगदान था। So now it is your time to take your homework.
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर 2, why did Gandhi suspended why did Gandhiji suspended non-cooperation movement? राइट, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। राइट, a short note on non-cooperation movement, and second, why did Gandhiji suspended non-cooperation? Okay, children, we will meet in lecture number 4. Till then, goodbye.